Welcome back once again, myself Pranshul Kumar Pathak, and we are discussing question answer of DBT 2020. So let's start with a question. It's really very interesting. Which interaction are generally observed at the core of a stable protein complex? अब ये जरा सोचना था, बच्चों ने यहाँ पे कैसे गलती किया आई डोंट नो, बट आई रियली ऐसा गलती आप नहीं कर सकते हो नो. If protein is folding, protein folding is going on. If you are talking about core, and this is not a core, this is a into the hydrophilic environment. Try to understand, okay? So on surface of a protein, always those type of amino acid will be there which can interact with water molecule. So hydrophilic molecule is never going to present on the surface. So surface protein is always hydrophilic in nature, but the core part is always hydrophobic amino acid containing protein. So अंदर जो भी प्रोटीन होंगे, अंदर जो भी पॉलीपेप्टाइड होगा इस कोर में, वो जितने भी अमीनो एसिड होंगे जो बरीड होंगे अंदर कोर में, वो सारे के सारे क्या होंगे, हाइड्रोफोबिक होंगे. तभी तो वो वाटर रिपेलेंट है, वाटर से इंटरेक्शन का नहीं है. हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स गो इनसाइड इनटू प्रोटीन एंड बरीड, एंड सरफेस प्रोटीन जो होगा वो हमेशा कैसा होगा, वो हाइड्रोफिलिक कंटेनिंग होगा. तो सारा आंसर से इससे साफ पता चलता है ऑप्शन 4 इज द राइट ऑप्शन. आई डोंट नो व्हाई यू पीपल आर डूइंग सच अ सिली मिस्टेक, आई डोंट नो. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Which one of the following amino acid is most likely to disrupt alpha helix? अल्फा हेलिक्स को कौन सबसे ज़्यादा मतलब डिस्टर्ब कर सकता है? बिकॉज प्रोलीन हैव अ Golgi group, lysine, arginine and valine is not going to change any structure of alpha helix. So proline, glycine and proline are two amino acid which is not allowed in general format of the secondary structure. So alpha helix is under what secondary structure, so proline is not going to be most likely to be disturbed. So which one of the following amino acid most likely to disrupt an alpha helix? तो अल्फा हेलिक्स को जो डिस्ट्रक्ट करने के लिए जो अमीनो एसिड होगा रिस्पॉन्सिबल, वो प्रोलीन होगा. चलिए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सटल वेक्टर क्या होता है? तो सटल वेक्टर मूव बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म ऑटोमेटिकली कुछ भी नहीं होता, ठीक है. हेल्प इन ट्रांसपोर्टिंग प्रोटीन फ्रॉम वन सेल टू द एडजेसेंट, help in conjugation of bacterial cell, can replicate in the cell of more than one organism. That is 110% right option. So option number 4 is correct. Okay, come to the next. In DNA molecule, two anti-parallel strands are complementary in their nucleotide sequence and pair to form right-handed double helix of 10 nucleotide pair of helical term. Obviously, so right option is A. बिना कुछ सोचे समझे, बिल्कुल ये कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं, इसमें कहीं कोई डिस्कस करने की कोई बात ही नहीं है, ठीक है. ए बीटा सीट रिच स्ट्रक्चर ऑफ प्रियोन प्रोटीन represents the normal function of protein, abnormal disease causing protein, intermediate state of protein and soluble form of protein. So obviously the beta rich structure of prion protein is represent abnormal disease causing protein. Okay, so prions के बारे में आप पढ़ लीजिए, बीटा स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ लीजिए. यहाँ पे you can stop my video and you can try to understand. Okay, come to the next question. The location of protein in cell can be studied using. अब बताओ एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी किस लिए यूज होता है? एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी इज यूज फॉर स्ट्रक्चर प्रिडिक्शन. दिस इज रियली वेरी मॉलिक्यूलर, प्रोटीन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से हम कर सकते हैं. इसमें कभी भी हम द लोकेशन ऑफ प्रोटीन नहीं बता सकते. लोकलाइजेशन के लिए कभी भी हम एनएमआर नहीं यूज कर सकते, वेस्टर्न प्लॉट नहीं कर सकते. लोकलाइजेशन के लिए हम कन्फोकल कर सकते हैं, फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी. तो यहाँ पे जो बेस्ट सुटेड आंसर होगा वो फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी होगा, खास करके बाइफोकल लेंस, जो बाइफोकल माइक्रोस्कोपी जो है वहाँ पे होगा. तो फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी इज द राइट ऑप्शन. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन.
हाउ मेनी लिंकेज ग्रुप वुड बी देयर इन प्लांट विथ 2n इक्वल टू 10? 2n दिया हुआ है 10. Okay, so total number of linkage group of an organism is equal to the number of autosomal in a haploid cell. So 2n दिया हुआ है, तो haploid करोगे तो n by 2 करोगे, that is 10. Right option is 10. If neuron that produce neurotransmitter dopamine could be generated from stem cell grow in a culture, it might possible to treat the patient suffering with. अब बताओ, हैव दिस न्यूरोट्रांसमीटर वीडियो जो मुझे देख करके मेरा गया होगा वो इस क्वेश्चन को आराम से करके आएगा. ठीक है, अब जो भी यहाँ पे डिजीज दिया हुआ है वो सारे के सारे न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज नहीं है, बट डोपामीन न्यूरोट्रांसमीटर जो है न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है. डोपामीन खास करके पार्किंसन के लिए होता है, तो पार्किंसन इज द राइट ऑप्शन. अगर जो भी ये बच्चा मेरा वीडियो थोड़ा भी देखा होगा न्यूरो ट्रांसमीटर पे तो ये क्वेश्चन करके आया होगा. अ डिटेल वीडियो ऑन न्यूरो ट्रांसमीटर इज अवेलेबल ऑन माय यूट्यूब चैनल. गो देयर एंड ट्राई टू रीड दिस ऑल. सिस्टिस फाइब्रोसिस इज ए आयन बेस्ड चैनल डिस्ट्रप्शन. क्लोरीन आयन में प्रॉब्लम हो जाता है तो सिस्टिस फाइब्रोसिस डिजीज होती है. ठीक है, बाकी आप डायबिटीज जानते ही हो. नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. यार ये क्वेश्चन आप कैसे गलत कर सकते हो आप लोग, मुझे समझ में नहीं आता. बहुत बच्चों ने गलत किया है. आई डोंट नो व्हाई दे I can't go in details, okay, but let's try to understand the basic thing behind this question. Gene related to vertical descendant from a common ancestor is called homologous, orthologous and paralogous. homologous में दो तरह के होते हैं, एक पैरालोगस होता है, एक ऑर्थोलोगस. होमोलोगस का जो ऑर्थोलोगस है वो कहाँ से आ रहा है? फ्रॉम वर्टिकल आ रहा है. वर्टिकल कहने का मतलब आपके पेरेंट से आप में आना, आपसे आपके बच्चों में जाना. इस तरह के ट्रांसफर को फ्रॉम कॉमन एंसेस्टर टू आपके नीचे जाना, ये ऑर्थोलोगस का एग्जाम्पल है. पैरालोगस में क्या होता है कि विद इन वन क्लैड जीन कैन सफर एंड चेंज इनटू अदर. सो कह रहा है डिसेंट फ्रॉम ए कॉमन एंसेस्टर, तो इसका राइट ऑप्शन ऑर्थोलोगस होगा. तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन. विदाउट एनी प्रॉब्लम यू कैन सोल्व दिस. जो भी, और इस पर भी मेरा वीडियो अवेलेबल है यूट्यूब पे, अगर आप ज़्यादा डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो वहाँ से जाकर के आप देख सकते हैं. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द ब्रॉड स्पेक्ट्रम हर्बिसाइड ग्लाइफोसेट द एक्टिव इंग्रेडिएंट राउंडअप इन वीट द एंजाइम. राउंडअप इज बेसिकली ए ग्लाइफोसेट. ग्लाइफोसेट कोई एक हर्बिसाइड है जो कि राउंडअप एक कंपनी है जो कि बेचती है. तो ग्लाइफोसेट क्या करता है, ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम हर्बिसाइड है. ये इनवीट करता है सिग्मिक एसिड बायोसिंथेसिस के पाथवे के एक जीन को जिसका नाम है EPSPS, शॉर्ट में हम कहते हैं, और बड़े EPSPS शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं. इसको कहते हैं इनॉल पायरुवेट सिकिमेट 3 फॉस्फेट सिंथेज. ओके, सो दिस एंजाइम इज बेसिकली इनहिबिटेड बाय ग्लाइफोसेट मॉलिक्यूल. और ग्लाइफोसेट क्या करता है, कॉम्पिटिटिवली जाकर के उसे बाइंड कर देता है. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. गोल्डन राइस. गोल्डन राइस है, फ्लेवर सेवर टोमेटो है. दिस थिंग्स इज ऑलवेज गोइंग टू आस्क बाय DBT. तो गोल्डन राइस इज जेनेटिकली इंजीनियर बाय अल्टरिंग द बायोसिंथेटिक पाथवे फॉर प्रोडक्शन ऑफ बीटा कैरोटीन. सो द कैरोटीनॉइड पाथवे is basically enhanced by golden rice. So that is option A. Carotenoid means vitamin A biosynthesis. Come to the hepatitis B is caused by viral infection. Okay, or you know very I think everyone will know that ki in 2020 Nobel Prize is given for hepatitis C. Okay, so hepatitis B भी viral है और वो भी viral है. Come to the next question. For microbial culture डबलिंग टाइम दिया हुआ है और ये मैंने आपको सोल्व करके दे रखा है, तो वहाँ से आप जाइए यूट्यूब पे, ये वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है, वहाँ से आप जा करके सीखें. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. फॉर ए टेट्रान्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस नंबर पॉसिबल फॉर कंटेनिंग यूजिंग ATGR. ATG में कितने होंगे? 3 है. ठीक है, बेसिस 3 के फॉर्म में आपको बनाने हैं. ठीक है, तो फॉर टेट्रान्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस यू हैव 3 बेस पेयर ओनली, तो 3 to the power 4, तो आंसर इज 81.
So right option is 1. Next question. The artificial sweetener aspartame, जो भी अगर अमीनो एसिड का मेरा लेक्चर देखा हो वो जरूर ये क्वेश्चन को करके आया, इज एंजाइमेटिकली प्रोड्यूस बाय यूजिंग थर्मोलाइसिन। एक बिल्कुल जो है मतलब क्या बोलूँ, एक छोटा सा बच्चा भी इसको कर सकता था अगर ये देखता तो, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल इज नॉट ए साइट फॉर रिएक्टिव ऑक्सीजन आरओएस जनरेशन। आरओएस जनरेशन कहाँ नहीं होता है? पेरिऑक्सीजोम होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, तो बचा क्या? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में कभी आरओएस जनरेट नहीं करता। अगर हुआ आरओएस जनरेट तो सेल की डेथ हो जाएगी और सेल में डीएनए डैमेज होगा और बहुत सारी चीज़ होगा। आरओएस आर ए पोटेंशियल हजारियस मोइटी produced in cell which will cause damage to the DNA if produced in nucleus. So nucleus में कभी भी ROS जनरेट नहीं होना चाहिए। अगर होगा तो अल्टीमेटली वो एपोप्टोसिस में जाएगा। एपोप्टोसिस का वे भी है कि ROS जनरेट करना शुरू कर दे, तो न्यूक्लियस इज द राइट ऑप्शन। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डिफिशियंसी ऑफ द माइक्रोन्यूट्रिएंट काउज ओल्डर लीफ ट्रंक डार्क ग्रीन रेडिश पर्पल। तो रेडिश पर्पल होने का मतलब है कि डिफिशियंसी फास्फोरस की है, पढ़ लीजिए। और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पर सीईसी यूजीसी के प्लेटफॉर्म पे बहुत अच्छा लेक्चर है, अगर आप कहोगे तो मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा अगर आपको किसी को भी ज़रूरत हो न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी पे। तो बहुत ही डॉक्टर आशीष नंदी द्वारा कवर्ड है, आप सीईसी यूजीसी के प्लेटफॉर्म पे डालेंगे तो मे भी आपको मिल जाए। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल बेस्ड है तो हम इसको करेंगे बाद में, ठीक है। अभी हम आगे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, क्योंकि मैंने अभी किया नहीं है उसको, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस डज नॉट कंट्रीब्यूट टू कन्वर्जन ऑफ प्रोटो ऑन्कोजिन टू ऑन्कोजिन, ठीक है। तो प्रोटो ऑन्कोजिन से ऑन्कोजिन की बनने की कहानी ये कैंसर की है, ठीक है। तो डीएक्टिवेशन म्यूटेशन ऑफ प्रोटो ऑन्कोजिन, जब क्यों ऐसा होता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस डज नॉट कंट्रीब्यूट टू कन्वर्जन ऑफ प्रोटो ऑन्कोजिन टू ऑन्कोजिन। अब सोचो, डीएक्टिवेशन ऑफ म्यूटेशन इनटू, जब ऐसा होगा भैया तो क्यों होगा कैंसर सेल? क्यों होगा? कैंसर तो बनेगा ही नहीं। अब जब डीएक्टिवेट कर दे रहे हो प्रोटो ऑन्कोजिन में तो म्यूटेशन होगा ही नहीं, तो वो ऑन्कोजिन, प्रोटो ऑन्कोजिन से ऑन्कोजिन बनेगा ही नहीं, तो ए ऑप्शन गलत है। सो राइट ऑप्शन इज 2। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 centimorgan is defined as a genetic distance between two loci with a statically correlated width, that is 1%। ये बिल्कुल ही कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन था। 1 centimorgan is equal to the 1% change in the Morgan। सो ये बिल्कुल ही बेसिक क्वेश्चन था। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच टाइप ऑफ पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन डज नॉट अकर इन प्लास्टिक? सो ग्लाइकोसाइलेशन। ग्लाइकोसाइलेशन कहाँ होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्लोरल एगामस, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। सो ऑल वैक्सीन मेंशन्ड बिलो आर एटेन्यूएटेड और इनएक्टिवेटेड होल पैथोजन एक्सेप्ट। यहाँ पे आप देखोगे तो टेटनस टॉक्सॉइड क्या होता है? इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन होता है। आपको पूछ रहा है ऑल वैक्सीन मेंशन्ड बिलो आर एटेन्यूएटेड और इनएक्टिवेटेड होल पैथोजन एक्सेप्ट, तो कौन होता है? तो ये होता है। तो राइट ऑप्शन इज 1। इसके बारे में, लेकिन वैक्सीन के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ये क्वेश्चन सीएसआर में भी आ सकता है। कम टू द पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट। तो आप देख सकते हो कि वाटर का सबसे ज़्यादा पोलैरिटी होती है, उसके बाद DMFO, फिर A, फिर ये सबसे कम होता है A, ये है A। तो यहाँ से भी आपको पता चल जाएगा। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। म्यूकोपॉलीसैकेराइड और जो हाइलुरोनिक एसिड होता है इज कंपोज्ड ऑफ, ये क्या होते हैं? N एसिटाइल ग्लूकोसामीन और N एसिटाइल ग्लूरोनिक एसिड के बन करके बना हुआ होता है। इसका यूज क्या होता है? हमारे कमेंट बॉक्स में आप लिख के दे सकते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इन्वॉल्व इन RNA एडिटिंग? सो द फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। द डिलीशन, इंसर्शन और केमिकल मॉडिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड आर प्रेजेंट इन mRNA। ओके।
कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बिल्कुल ही इजी है। आप खुद सोचो कि 1 मोल अगर आप बना रहे हो तो 40 ग्राम आपको 40 ग्राम लोगे और 1 मोलर यूज करोगे 1 लीटर के लिए। अब ये कह रहा है 1 ml में ये यूज कर रहे हैं 4 mg 1 ml में, तो ये वही 0.1 मोलर के आसपास आपको आएगा। इट्स वेरी इजी और कोई भी देख करके बता सकता है। सो यू कैन कैलकुलेट, बहुत लेंदी नहीं है, सामने सामने सब कुछ दिख रहा है। जैसे ये याद रखना था कि 1 मोल जो बनता है NaOH वो कितना कंटेन करता है, कितना ग्राम करता है, अगर उससे अगर आप कर लेते तो आसानी से सोल्व हो जाता। ठीक है। सिंथेसिस ऑफ सीड आर मोस्टली डिराइव्ड फ्रॉम सोमैटिक। सिंथेटिक सीड जो बनाया जाता है वो सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस से बनाया जाता है, और सिंथेटिक सीड में अल्जिनेट बीज को यूज किया जाता है, और उसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा, दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। कम टू द DNA ग्लाइकोसाइलेज। DNA ग्लाइकोसाइलेज जो है बेसिकली DNA बेस एक्सचिजन रिपेयर में आता है। बहुत तरह का DNA रिपेयर मैकेनिज्म है। ठीक है, तो इसमें से एक है बेस एक्सचिजन रिपेयर, तो DNA ग्लाइकोसाइलेज यही यूज होता है, आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल में यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकते। व्हाट इज द यूज ऑफ aminopterin in hybridoma production? Several times I've told you guys that try to read about hybridoma technology. So it's to kill the unfused myeloma cell. hybridoma टेक्निक नेगेटिव सिलेक्शन के लिए यूज होता है। आप देख लीजिएगा इसमें पॉजिटिव सिलेक्शन में क्या होता है, नेगेटिव सिलेक्शन में क्या होता है। यहाँ पे आंसर है टू किल unfused myeloma cell. Come to the next question. Which one of the following represent a quantitative measure of a structural similarity between two protein? That is the root mean square deviation. और ये बिल्कुल ही स्टैटिक्स बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसको पढ़ाने के लिए हमें आपको लंबा टाइम देना पड़ेगा, तो वी विल डिस्कस इन डिटेल। सो ओनली 10% ऑफ बेबीज विथ एडवर्ड सिंड्रोम, दिस इज ए जेनेटिक। एडवर्ड सिंड्रोम साफ सी बात थी, इतना कहानी कहने का कोई जरूरत नहीं। एडवर्ड सिंड्रोम क्या होता है, ट्राइजोमी 18 नंबर क्रोमोसोम से होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर। RNA पॉलीमरेज ट्रांसक्रिप्शन, अल्कलाइन फॉस्फेट रिमूवल ऑफ फॉस्फेट, DNA पॉलीमरेज 1 वीक ट्रांसलेशन। ऑब्वियसली जो बच गया सो इनकरेक्ट है। ठीक है, चल। The first drug approved by FDA of USA was produced through a genetic engineering batch, that is insulin. Okay, so by this note I want to thank you for your patience. We will see you soon to the next. Bye, take care. Okay.